Hello students, good morning. Today we will learn a new story of one palace, one place. That is name of that place is Hastinapur. The chapter 4 and the name of chapter is The Princess of Hastinapur. Princess मतलब क्या students? राजकुमार है ना, हस्तिनापुर के राजकुमार. Now the students open page number 25. Open your textbook first and watch this video, listen this video and pay attention in your textbook. Now this story is historical story because the story is selected from a great epic of India. The name of that epic Mahabharata. बहुत पुराना, आपने देखा होगा, ये बहुत पुराना महाकाव्य है. आपने आपके दादी से सुना होगा रामायण महाभारत. उस जमाने में जो जो कुछ घटनाएं हो गई वो सभी इसमें लिखी गई है. तो ये रामायण और महाभारत ये बहुत बड़े महाकाव्य है, बहुत बड़े इपिक है, एशियंट इपिक. सो इन दिस स्टोरी और इन दिस महाभारत देयर इज 2 ब्रांचेस ऑफ अ फैमिली. सगे, आपको पता है ना, चाचा के लड़के और हम कजिन्स होते हैं. सो यहाँ पे एक फैमिली के 2 ब्रांचेस, मतलब उस फैमिली से रिलेटेड कौरव एंड पांडव. आपने नाम भी सुना होगा आपके दादी से. तो कौरव कितने थे, कितने कौरवास थे? 100 कौरवास थे ना. 100 कौरव और 5 पांडव थे. तो उनके फैमिली के बारे में ये स्टोरी है. और उनके जो ग्रैंडफादर थे, what is the name of that grandfather in our story? So name of that grandfather was Bhishma. क्या नाम था उनका? भीष्म, ऐसा नाम था. So you can see here students, there is palace and birds are chirping, flowers, beautiful garden, and some princes are playing, and the grand it means very old man sat there. So he was not another, he was a Bhishma. He was grandfather of Kaurav and Pandavas. Okay, so now he is grand uncle of that Kaurav and Pandavas. So here below that tree he sat and he is looking something. So what does he look and what does he think? That all information we have to take from this story. So I'll read some lines and I will explain that line in English and Hindi. Okay, so let us start students. It was playtime for the 100 Kaurav princes and their 5 Pandav cousins. कौरव और पांडव कौन थे? कजिन्स थे एक दूसरे के, है ना. और ये उनके खेलने का समय हो गया था. प्ले टाइम, खेलने का समय हो गया था. 100 कौरव थे. कितने जन थे वो? 100 कौरव और 5 पांडव थे. और उन सभी का खेलने का समय हो गया था. भीष्मा वॉज देयर ग्रैंड अंकल. भीष्मा कौन थे उनके? कौरव और पांडव के कौन थे वो? ग्रैंड अंकल थे. He was sitting at his favorite place in the palace garden. वो जो ग्रैंड अंकल थे, भीष्मा थे, उनको कहाँ बैठना पसंद था? पैलेस के बाहर जो गार्डन था वहां पे बैठना उनको बहुत पसंद था. वो जगह उनको बहुत पसंद थी, इसलिए वो हरदम वहां पे इट मीन्स एवरी डे ही वुड सिट देयर. वो हमेशा वहां पे क्या करते थे? बैठते थे. और वहां पे बैठकर सभी निरीक्षण वो करते थे. It had green lawns, trees and flower beds. You can see here in this picture students, there are a lot of flowers and green trees and really so wonderful garden it was. वो गार्डन कैसा था? हरे भरे पेड़ थे और काफी पेड़ थे वहां पे और फ्लावर्स भी थे और बहुत ही सुंदर लॉन्स थे, है ना. हरी हरी घास थी उस गार्डन में और बहुत प्यारा वो गार्डन था. Bhishma smiled as he heard the sound of running feet. और वो अपने चेहरे पे थोड़ा मुस्कुराहट लाते थे जब वो सुनते थे किसी की दौड़ने की आवाज. तो वो आवाज किसकी थी?
पैरों की आवाज थी। रनिंग, जब हम भागते तो हमें हमारे पैरों की आवाज आती है, तो उसी प्रकार से जब उनको वो पैरों की आवाज आती थी तो वो खुश होते थे। और वो आवाज किनकी थी? कौरव और पांडव की थी, क्योंकि वो हमेशा वहां पे खेला करते थे। There they were rushing out of the palace, laughing and shouting. Rushing out means बाहर आना। पैलेस जो राजवाड़ा था, बहुत बड़ा जो भवन था, राजभवन था, उससे वो बाहर आकर क्या करते थे? भागते थे, हंसते थे और खेलते थे और शाउट भी करते थे, चिल्लाते थे। सो क्या होगा इन दिस स्टोरी? Turn the page and what happened in this story? Let us read. You can see here is mangoes. Lot of mangoes are there. There are three, I think, three princes are there. Below side also you can see one prince is there. And here are many kites are there. So what happened? Let us see. It was the rainy season. It was the rainy season. वो किसका मौसम था? बारिश का मौसम था. You know rain. Now is rainy season is going on, na students? Did you see the rain? Yeah, in Myanmar it is very few rainy season we can watch, but no problem. Nowadays also rainy season is going on. So on that time also there it was the rainy season. बारिश का ही मौसम था. The boys wanted to fly kites. पतंग उड़ाना. वो बॉयज को क्या लगा कि हमें, जो प्रिंसेस थे उन्हें लगा कि हमें पतंग उड़ाने हैं. Soon the kites filled the sky with different colors. It looks so beautiful. और देखते देखते क्या हो गया, वो प्रिंसेस और उनके दोस्त भी वहां पे काइट्स उड़ाने लगे. और वो जो स्काई था, वो जब वो काइट्स उड़ने लगे, पतंग उड़ने लगे, तो वो जो स्काई था वो बहुत ही ब्यूटीफुल, सुंदर दिखने लगा था. Bhima was the second of the Pandava's brother. Bhima loved to show off how strong he was. अभी जो पांडव थे, 5 पांडव थे, है ना, उनके नाम पता है क्या आपको? सो वो 5 पांडव में जो थे, जो पहले तो युधिष्ठिर थे, फिर भीमा थे, अर्जुन थे, नकुल थे, सहदेव थे. और इन 100 कौरवों के नाम भी वो तो काफी बड़े होंगे. दुशासन, नकुल, वो नहीं पता, तो आप पूछिए आपकी दादी से वो 100 कौरवों के नाम क्या थे. तो भीमा उस पांडव में सेकंड था. जो पांडव जो फैमिली थी उसमें ये सेकंड था. और वो इतने स्ट्रांग थे, भीम बहुत स्ट्रांग था भीम. बट उसे शो ऑफ, मतलब वो दिखाना नहीं चाहता था किसी को कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ. सो वो किसी को ऐसा दिखाना नहीं चाहता था. एक्चुअली वो बहुत खुद स्ट्रांग था, बहुत ही धष्ट था, बहुत ही स्ट्रांग था वो. He waited till 3 of his cousins had climbed a mango tree. वो इंतजार कर रहा था कि उसके कजिन्स कब वो मैंगो ट्री पे जाते हैं. Laden with the golden fruit. Laden with means जो filling with means भर जाना. सो वो जो सामने ट्री था वो पूरे मैंगो से भर गया था. काफी मैंगोज, उस पे आम, उस ट्रीज पे बहुत सारे आम आ गए थे. और ये उसके 3 कजिन्स भी उस पेड़ पर चढ़ गए थे. आप देख सकते हैं पिक्चर में वो तीनों 3 कजिन्स आर देयर. एंड बिलो दैट ट्री यू कैन सी he was Bhim. So I'm so strong I can shake the mangoes off the tree, he boasted. उसने बोला कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मैं मैंगो को भी गिरा सकता हूँ. एंड प्रेज हिमसेल्फ, मतलब खुद की ही तारीफ करते हुए ये बोला. वाइल ही वॉज अ बेबी, जब भीम छोटे थे या छोटा था तो क्या हो गया था. भीमा हैड वंस फॉलन फ्रॉम अ ग्रेट हाइट ऑन अ रॉक. द रॉक हैड ब्रोकन इनटू पीसेस बट भीमा वॉज अनहर्ट. मतलब भीम इतना स्ट्रांग था, जब वो छोटा था तो वो एक पहाड़ से, एक पर्वत से गिर गया था. और जब वो गिर गया था तो उसे कुछ लगा नहीं था, बल्कि वो जो पर्वत था, जो पहाड़ था, जो पत्थर थे, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए थे. मतलब इतना उसका जो शरीर था वो इतना स्ट्रांग था भीम का. तो आप इमेजिन करो कि वो खुद गिर गया लेकिन उसे कुछ लगा नहीं. ऊपर से जो पहाड़ था, जो पर्वत था, वो चूर चूर हो गया. उसके जो पत्थर थे वो ऐसे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो गए. मतलब भीम कितना स्ट्रांग होगा स्टूडेंट्स. थिंक
how strong he was. Now on third page, oh, shake the mangoes indeed. Dushasan made fun of him swinging upon one of the branches of the tree. जब भीमा ये बोल रहा था तो दुशासन ने बोला, ओ तो ये जो मैंगोज है इसको हिला के तो दिखाओ, उनको गिरा के तो दिखाओ. और वो मजाक करने लगा भीम के साथ. भीम को वो टीच करने लगा, बोलने लगा, अरे हाँ तुम में इतनी ताकत है तो इस पेड़ पर जो मैंगोज लगे हुए हैं उनको गिरा कर तो देखो, दिखाओ मुझे. और वो लटकने लगा एक ब्रांच पे. आप देख सकते हो, दैट इज दुशासना. he was swinging upon one of the branches. it is swinging, it is called swinging. झूला झूलना, ब्रांचेस को होल्ड करके, ब्रांच को पकड़ के झूला झूल रहा था वो दुशासन. सो दुशासन बोला, अरे हाँ तुम इतने स्ट्रांग हो, मैंगोज गिरा सकते हो, तो एक काम करो, गिरा के दिखाओ. इस ब्रांचेस से जो मैंगोज है वो हमें गिरा के दिखाओ. और वो खुद क्या करने लगा दुशासन, झूले से एक ब्रांच से जो टहनी होती है मैंगोज ट्रीज की, उसे वो झूला झूलने लगा. जस्ट वॉच मी सेड भीमा. तो भीमा ने बोला, हाँ देखो फिर. लुकिंग अप एट दुशासन एंड लाफिंग. दुशासन की तरफ उसने देखा और वो हंसने लगा. Bhim shook the tree so hard that not only the mangoes but all the three cousins came tumbling down as well. और देखते देखते भीम ने क्या किया, उस ट्री को हिलाना, मैंगो ट्री को हिलाना स्टार्ट किया. वो इतने जोर से उस ट्री को हिला रहा था तो सिर्फ उसे मैंगो ही नहीं गिराने थे जमीन पे, तो जो थ्री कजन्स भी थे उनको भी, वो भी क्या हो गए, टूट गए. वो भी टूटना मतलब क्या, ब्रांच से अलग हो जाना. तो वो तीनों ब्रदर्स, तीनों कजिन्स भी क्या हो गए, नीचे गिर गए. दुशासन स्क्रीम विथ एंगर. स्क्रीम विथ एंगर मीन्स चिल्लाना, गुस्से से चिल्लाना. तो दुशासन चिल्लाने लगा. दुशासन चेस्ट भीमा डाउन द गार्डन पाथ. मीन्स भीमा के जाने के पहले ही दुशासन उसके भी पहले वहां से भाग गया. दुशासन चेस्ट भीमा डाउन द गार्डन पाथ. ओके, इनफ यू टू कम बैक, कॉल्ड आउट भीष्मा. तो इनका ये चालू ही था, वो थ्री कजिन्स थे, भीमा था, उनका वो कॉन्वर्सेशन चालू ही था. वो आपस में बातें कर रहे थे, पेड़ों को हिलाया जा रहा था, वो गिर भी गए नीचे. फिर उन्होंने एक दूसरे को, मतलब दुशासन ने टीज भी किया. तो ये सब बातें चालू थी. तो तभी भीष्म क्या बोले, भीष्म पितामह कहलाते थे वो बोले, ओके इनफ, बस अभी बस करो, झगड़ा बंद करो, या तो एक दूसरे को टीज करना बंद करो. कम बैक यू टू, तुम दोनों इधर आओ. भीष्म स्टूड अप एंड वेंट टू सेटल द क्वारल. भीष्म हैड बीन अ ग्रेट वॉरियर. फिर भीष्म ने क्या किया, उन दोनों के बीच जो झगड़ा लगा था उसे स्टॉप कर दिया, या उस झगड़े को मिटा दिया. एक्चुअली भीष्म कौन थे, बहुत बड़े फाइटर थे, बहुत बड़े लड़ाई, उन्होंने खुद इतने बड़े लड़ाई वो करते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, इन दोनों को झगड़ा करने से मना किया. बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट फाइटर व्हेन ही वॉज यंग, और इन हिज डेज ही वॉज सो great warrior or great fighter. Now stories, oh students, the story of the Pandavas and the Kauravas is written in a big book called the Mahabharata. आपको और भी स्टोरी अगर सुननी होगी तो वो सभी स्टोरीज इस बुक में, महाभारत एपिक में, इस महाकाव्य में आपको मिल जाएगी. Actually, what is the lesson we can take from this topic or from this story, students? It means गर्व करना बुरी बात है ना. कोई भी हमारे पास जो भी कुछ है, बल है, बुद्धि है, उसका हमें शो नहीं करना चाहिए, शो ऑफ नहीं करना चाहिए, किसी को दिखाना नहीं चाहिए कि हम कितने स्ट्रांग है ना. तो यही बातें हमें ध्यान में रखनी है, और हमें किसी को कम भी नहीं समझना चाहिए, किसी के बल को. It means we should not teach to anyone what he has, or don't decide that. It means how strong we are.
कि हम कितने शक्तिशाली हैं, हम कितने बलशाली है, सामने वाला वो कर नहीं सकता. It is wrong, students. Okay, we should not judge the ability of another. So that is the moral of the story. Okay, understood? Now the meaning and spelling of the new words using the look, cover, write and check method. That's some word yesterday also we had read, but one more time we will read that word. Boasted, boasted, praised himself. To settle a quarrel means to stop the cousins from fighting. फाइटिंग होते मारामारी अगर चालू हो गई होती है तो वो रुकवाना, दैट इज मीन्स टू सेटल अ क्वारल. ओके, झगड़े को बंद करना या मारामारी होते होते उसे रोक देना, इट मीन्स द सेटल अ क्वारल. चेस्ट, ran after. Laden with, filled with. Warrior, fighter. So these are new words and some phrases are there like this: laden with, then tumbling, to settle the quarrel. So like these new words are in this story, but story is so simple. Moral is also so simple, no problem with that. Here we will read together 6 lines. Page number 26 for reading practice. IT8 WAS was, THE the, RAINY rainy, SEASON season, THE the, BOYS boys, WANTED wanted, TO2 FLY fly, KITES kites, SOON soon. You have to keep your fingers below the words, ना students, while reading. आपको क्या करना है, वर्ड के नीचे आपको फिंगर रखना है और फिर जैसा मैं बोलती हूँ वैसी स्पेलिंग रीड करके रीडिंग करना है. ओके, THE the, KITES kites, FILLED filled, THE the, SKY sky, WITH with, DIFFERENT different, COLOURS colors, IT it, LOOKED look, SO so, BEAUTIFUL beautiful, BHIMA beamer, WAS was, THE the, SECOND second, OF of, the, PANDAVEA Pandva, BROTHERS brothers, BHIMA Bhima, LOVED loved, to, SHOW show, OFF of, HOW how, STRONG strong, HE he, WAS was, HE WAITED waited, TILL till, THREE 3, OF of, HIS his, COUSINS cousins, HAD had, CLIMBED climb, MANGO mango, TREE tree, LADEN laden, WITH with, THE the, GOLDEN golden, FRUIT fruit. Okay students, so like this together we will read at least 6 lines, 7 lines or maybe sometimes 10 lines. Okay, no problem. So while reading the words, keep your fingers, read the alphabets and try to pronounce that words. It is the way of reading. So every day we will do practice like this. Okay. Now I had given explanation in English and Hindi. I hope you have understood this story.
because next video I will send on the question and answer. Okay, till watch the video and take care. Bye students.